केजरीवाल की जमानत रद्द करने की मांग की गई है। पटीशन ते जल्द तो जल्द सुनवाई की मांग की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी है। कल जमानत मिली है। हालांकि अजे तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं हुई। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पक्ष ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੀਟ ਅਤੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਮੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਤੂਲ ਪੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੀਟ ਤੇ ਨੈਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੂਬ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੀਐਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ स्पीकर की चोण ते है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। तो इस मुद्दे ते आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र ते हमला बोलिया। इत्थे तंज कसदे कहा कि देश दे विच एक भी प्रीख्या गड़बड़ी ते पेपर लीक दे बिना नहीं हो रही। ये बीजेपी का पेपर लीक कांड है और पिछले 2 साल में 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है पेपर लीक के कारण। 60 लाख बच्चे अकेले यूपी में बर्बाद हो गए। पुलिस भर्ती की पेपर लीक, उसके बाद नीट का पेपर लीक, उसके बाद यूजीसी का पेपर लीक, कभी गुजरात में कोई परीक्षा होती है उसका पेपर लीक।
कभी बिहार की परीक्षा का पेपर लीक, कभी यूपी की परीक्षा का पेपर लीक, कभी महाराष्ट्र की। तो जहां जहां भाजपा का शासन है पूरे देश में, पेपर लीक कांड हो रहा है। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤੇ ਨੀਟ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसमें जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी होगी। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। गांधी ने छात्रों से मुलाकात की, नीट के छात्रों से पेपर लीक के मसले पर। एक छात्र हमारे साथ हैं, आपने इस बार नीट दिया था? हाँ जी, हाँ जी। क्या रिजल्ट रहा? मेरा 648 स्कोर रहा और मेरी ऑल इंडिया रैंक 31,000 के करीब है। लास्ट ईयर मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी 7 to 8,000 के करीब आएगी, बट इस साल मेरी रैंक 31,000 के करीब है, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। तो हमने ये सारा मुद्दा राहुल गांधी जी से और बाकी सब लीडर से बात करी, तो उन्होंने हमें बस यही आश्वासन दिलाया कि वो इस मुद्दे को पार्लियामेंट में रेज करेंगे। तो पार्लियामेंट में रेज करेंगे। आपने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा? नीट पेपर को कैंसिल करने की मांग की जो परीक्षा थी, राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने सबसे पहले हमसे हमारी समस्या पूछी कि हमारी क्या समस्या रही है, हम ऐसा क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फिर हमने उन्हें बताया कि जिस हिसाब से इस बार स्कैम हुआ है नीट में, उसका सिर्फ एकमात्र ही सॉल्यूशन है रीनीट। तो हमने उनसे यही कहा है कि रीनीट होए। हमने 3-4 डिमांड रखी है अपनी। से पहली डिमांड है कि रीनीट होए, दूसरा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पे, क्योंकि जैसे कि एनटीए ने भी लास्ट कल एक एग्जाम को वो करा है, पोस्टपोन कैंसिल करा है यूजीसी नेट का, उसमें तो इतनी आवाज भी नहीं उठाई लोगों ने, बट उन्होंने सीधा उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, बट नीट के एग्जाम में इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतने सबूत मिल रहे हैं, फिर भी वो इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो हमने इस बात का मुद्दा उठाया, सीबीएसई इन्वेस्टिगेशन होए, रीनीट होए और काउंसलिंग पे स्टे लगवाया जाए जल्द। काउंसलिंग पे स्टे लग जाए। राहुल गांधी ने कुछ कहा कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, या क्या कहा उन्होंने? राहुल गांधी जी ने भी कहा कि जिस हिसाब से हम उन्हें डाटा वगैरह बता रहे थे कि जैसे कि लास्ट ईयर 620 से 720 के बीच सिर्फ 0.5% बच्चे थे, और इस साल 620 से 720 के बीच में 2.5% बच्चे हैं। तो ये एकदम डाटा फ्लक्चुएट हुआ। इसका एक यही है कि लीक हुआ है। अगर नीट लीक हुआ है और कई सेंटर्स पे OMR का स्कैम हुआ है, तो उसको एकदम हम कवर नहीं कर सकते, तो रीनीट ही हो सकता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपांशु कर। तो राहुल गांधी ने नीट के छात्रों से मुलाकात की, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पहुंचे थे। आपका नाम? सर राजीव गुप्ता बोल रहा हूँ। राजीव जी, आप भी राहुल गांधी से मिले? आप नहीं, हमारी नहीं, बच्चों की मुलाकात हुई है सर। क्या कहा बच्चों को राहुल गांधी? बच्चों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय करवाया जाएगा। आपका नाम क्या है? अवनी। अवनी, आपने इस बार एग्जाम दिया था? हाँ जी सर। क्या रैंक था? 23,000। तो क्या कहा आपने राहुल गांधी से, और राहुल गांधी ने क्या कहा आपसे? सर हमने बस ये बोला कि हमें रीनीट चाहिए, और उन्होंने उस चीज़ का एश्योरेंस दिया है कि वो इस चीज़ को करवाने की कोशिश करेंगे बस। उन्होंने कहा कि अभी स्ट्रेस मत लो, जो भी होगा अच्छा होगा, एंड री एग्जाम की हम पूरा कोशिश करेंगे कि री एग्जाम हो। प्रियंका जी और सोनिया जी भी थी बातचीथ में? नहीं, सिर्फ केवल राहुल जी थे। ਤਾਂ यूजीसी नेट पेपर गड़बड़ी की जांच शुरू हो गई है और सीबीआई ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने अनपछातियां के खिलाफ 10 केस दर्ज किया है और सीबीआई ने IPC की धारा 420 और 120 के तहत परचा दर्ज किया है। बिहार के रहने वाले कुछ मुलजमां तो भी पुछगिछ हो सकती है। देश भर के 18 जून को दसदी कि यूजीसी नेट का पेपर होया सी, अगले दिन ही सिक्ख्या मंत्रालय ने इस पेपर को रद्द कर दिता सी। हुण इस दे विच गड़बड़ी की जांच शुरू हो गई। नेट परीक्षा मामले में जिस तरह से फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था, आखिरकार इस मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की औपचारिक तौर पर एंट्री
हो चुकी है। अब सीबीआई के द्वारा इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया गया है और इस मामले में गुरुवार की देर शाम को इस मामले में औपचारिक तौर पर बताया गया कि केस को रजिस्टर्ड करने के बाद अब सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया गया है। और जिस तरह से इस मामले में कई अलग अलग जगहों से कई ऐसे इनपुट्स निकल के सामने आ रहे थे जिससे कि ये पता चल रहा था कि किस तरह से यूजीसी नेट परीक्षा में धांधली की गई थी, फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। हालांकि इस मामले में जैसे ही मामला सामने आया, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो एक संस्था है I4C, उसके द्वारा जैसे ही इस मामले में इनपुट दिया गया, 24 घंटे के अंदर इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया कि सबसे पहले जो परीक्षा हुआ था उस परीक्षा को रद्द किया गया और इस मामले में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक अनुशंसा किया गया कि इस मामले में जल्द से जल्द सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लिहाजा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को अवगत कराया गया। उसके बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर अब सीबीआई के द्वारा केस को रजिस्टर्ड करके उस तमाम कनेक्शन को ढूंढने के लिए और आरोपियों से जुड़े मामले पर पड़ताल शुरू कर दिया गया है। और जिस तरह से इस मामले में सबसे पहली जो सुई है, बिहार से कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार से जुड़ा हुआ कुछ ऐसे जो छात्र हैं जो बिहार मूल के हैं, उनको जिस तरह से बकायदा बताया गया था कि जिस तरह से परीक्षा पत्र के बारे में उनको जानकारी दी गई थी और तमाम जानकारियां दी गई थी, लेकिन इस मामले में जिस तरह से राजनीतिक गलियारों से जुड़ा हुआ कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है, तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं और जल्द ही इस मामले में एक कहा जा सकता है कि कई लोगों से जब पूछताछ की जाएगी तो इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਲ ਲੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। पीएम नरेंद्र मोदी के वालों सुनेहा दिता गया है और 5 तस्वीरां से तुहानूं दिखा रहे हैं जिहड़े वड्डे आगू ने उन्हां दे वल्लों भी वक्खो-वक्ख थाई योग कीता गया। जेपी नड्डा प्रधान ने कौमांतरी प्रधान ने बीजेपी दे उन्हां दे वल्लों और केंद्रीय सेहत मंत्री दस दईए कि जिन्हां दे वल्लों योग कीता गया। नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मंत्री उन्हां ने भी योग कीता। तस्वीर दिखा रहे हैं सीएम यूपी योगी आदित्यनाथ दे वल्लों भी योग कीता गया। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री दे वल्लों योग कीता गया। किरण रिजिजू संसदीय मामले के मंत्री उन्होंने वालों भी योग किया गया है। उस मौके ईश्वर परिधान से मन शांत और प्रसन्न हो गया है। तो कौमांतरी योग दिहाड़े ते केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी योग किया है। फिट रहन का मंत्र दिता है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जेपी नड्डा के वालों योग किया गया है। वड्डी गिनती दे विच नाल भी ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ